So students, here we are with the last part of the chapter, that is part 4. Before we move ahead, again let's just quickly check those topics which we had discussed in the last part. We discussed about indentured labor migration and development of mixed culture, that's composite culture. Then we discussed about Indian entrepreneurs abroad. Then we talked about Indian trade, colonialism and global system. We also discussed about drain of wealth from India. Then we talked about interwar economy. We discussed about First World War. Then wartime transformations. Then we talked about consequences and post-war recovery. Now let us come to, as soon as war was over, US emerged as the superpower, and later on what happened, there was agricultural economic crisis. Okay, what happened actually before the war? Who was the major supplier of wheat to Europe? Actually, it was from Eastern Europe. And no doubt it was Russia. Now, when the First World War was going on, you have read in class 9th that there was Russian Revolution in 1917. So, and even Russia also suffered a lot during First World War. There were a lot of losses, It led to loss of human capital in Russia as well as economic decline in Russia, then political changes also in Russia. So, the supply of this food from Russia was disrupted. Okay, what happened? And now when this supply was disrupted, who took over? During this time, what was happening? The wheat production was being increased in Canada, America and Australia. And this production, it was expanded dramatically. And these countries that took over the market of Europe. Actually, the major supplier of wheat now to Europe was America. Okay. And when the war was over, what happened? The production in Eastern Europe, it revived. But what happened? It created a glut in wheat output. Now, what is glut? Whenever the supply is more than demand, what happens? The price decreases. Okay. To the farmer, what will he do? Farmer क्या करेगा? अगर price कम हो गई तो उसकी income कम हो गई. तो वो सोचेगा कि मैं थोड़ा और production करके और बेच लूं अपने profit को बनाने के लिए. But in this case, what is happening? The supply is being increasing beyond, we can say, demand. Demand बढ़ नहीं रही, supply बढ़ती जा रही है. Now what will happen? There will be crash of price. Price बहुत नीचे चली जाएगी. ठीक है, और supply बहुत ज़्यादा हो गई. So this situation in economy is known as glut. So finally what happened? The grain prices, they fell down. The rural incomes declined. And the farmers, they fell deeper into debt. वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए. ठीक है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में एक डिप्रेशन आना शुरू हुआ. इन बिटवीन यूएस में क्या हो रहा था? मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ यूएस में. ओके, देयर वाज राइज ऑफ मास प्रोडक्शन इन यूएस, जिसने यूएस इकोनॉमी को काफी एनहांस किया. यूएस में फार्मिंग भी अच्छी खासी हो रही, वीट प्रोडक्शन भी एक्सपैंड हो रहा है, प्लस सिटीज में मास प्रोडक्शन भी हो रहा है. सो इन दोनों ने यूएस इकोनॉमी को काफी एनहांस किया, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मास प्रोडक्शन का फोर्ड्स कंपनी. यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी. T model Ford, it was the first mass produced car in the world. Okay, और इसकी अपनी कहानी है. When Ford, he tried to mechanize the factory by introducing conveyor belt production. Okay, तो यहाँ के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, तो उस केस में क्या किया इसने? ही doubled the daily wages of the laborers. Okay, उसने सारे ट्रेड यूनियंस को अपनी कंपनी में बैन कर दिया. प्लस उसने बोला मैं सैलरी डबल दूंगा, यू हैव टू वर्क ऑन कन्वेयर बेल्ट. ठीक है, अब ये कन्वेयर बेल्ट क्या है? असेंबली लाइन प्रोडक्शन है, जिसमें एक पार्ट चलते हुए आ रहा है, वर्कर को उस पर टाइम मिला है 5 मिनट्स का, विद इन दैट टाइम ही हैज टू कंप्लीट द वर्क. फिर कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ गया, दूसरा वर्कर उस पर काम कर रहा है. तो यहाँ पर वर्कर्स को आपस में गपशप करने का टाइम नहीं है. दे हैव टू टोटली फोकस ऑन देयर वर्क. सो वर्कर्स, दे वर मेड टू वर्क हार्ड, दे वर मोटिवेटेड बाय डबलिंग देयर सैलरीज ऑल्सो. और फाइनली यूएस में जबरदस्त मास प्रोडक्शन हुआ. ओके, और इस स्टाइल का जो प्रोडक्शन था, इसकी कॉपी पूरे यूरोप में भी हुई. ओके, ये पूरे यूएस में भी स्प्रेड हुआ, प्लस यूरोप में भी स्प्रेड हुआ. अब जब मास प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा? जो प्राइसेस है कमोडिटीज की, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा.
प्राइसेस कम हो जाएंगी, मोर एंड मोर पीपल कैन अफोर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। फिर जो वर्कर्स है उनके वेजेस भी बढ़ गई, बिकॉज ऑफ हायर वेजेस नाउ द वर्कर्स कुड नाउ अफोर्ड more things, more durable consumer goods, like they can buy cars, they can buy refrigerators, even they can take a home on loan also. अगर हम कार प्रोडक्शन की बात देखें तो यूएस में जो कार प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ा. इट रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919 टू मोर देन 5 मिलियन इन 1929. ठीक है. And then there was increase in the purchase of refrigerators, washing machines, radios, gramophone players. How? Through the system of hire purchase. Yani on credit they started taking those things. And finally, US, it emerged as the largest overseas lender. आप देखो, by 1923 the US resumed exporting capital to the rest of the world, and it became the largest overseas lender. मतलब सारी दुनिया को वो लोन दे रहा है यूएस, उसकी इनकम इतनी बढ़ गई. ओके. The US imports, their capital exports also boosted European recovery. जो यूरोप में इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ उसने उसको रिकवर करने में भी हेल्प किया. वर्ल्ड ट्रेड भी एनहांस हुआ. ठीक है. इनकम ग्रोथ भी हुआ नेक्स्ट 6 इयर्स में. एंड फाइनली बाय 1928 व्हाट हैपेंड, जो एग्रीकल्चर में डिप्रेशन आ रहा था उसका इकोनॉमी पे बहुत जबरदस्त असर हुआ, और 1929 आते आते ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ. दिस वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन द वर्ल्ड, अगर आप इससे रिलेट करो. और इसका ओरिजिनल कॉज क्या था? इट वाज ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जिससे इकोनॉमी डिक्लाइन हुई. देयर वाज अ सिचुएशन नोन एज ग्लट बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. अब जब इनकी प्राइस डिक्लाइन हुई तो यूएस का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? सेलिंग दैट व्हीट इन यूरोपियन मार्केट. तो यूएस की इनकम कम हो गई. अगर हम देखें तो यूएस की नेशनल इनकम अराउंड हाफ हो गई, आधी कम हो गई, आपके आधी हो गई एक तरह से कह लो. सो अब यूएस क्या है, वो अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देगा. तो यूएस ना उसने सारे जो लोन्स वो यूरोप को दे रहा था उसने विड्रॉ कर लिया. इवन जो यूरोप की चीजें यूएस में आ रही है उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज उसने डबल कर दी. अब यूरोपियन कंट्रीज को तो बहुत लॉस हुआ, एंड इन बिटवीन यूएस इज ट्राइंग टू बैलेंस इट्स इकोनॉमी. अगर हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करें ना तो एक डेट है हमारी इकोनॉमी में जिसे हम कहते हैं 24 अक्टूबर 1929. अराउंड 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड वन डे. और जो यूएस का आप कह सकते हो वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट था वो टोटली क्रैश हो गया. यूएस बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन. बाय 1933 अराउंड 4,000 बैंक्स वर क्लोज्ड इन यूएस. Around 1,10,000 companies collapsed. Think about the economy of Europe. अब आज की डेट से रिलेट करो, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हो गई हैं. हर कंट्री को लॉस हो रहा है इकोनॉमी वाइज. You can relate it with the current scenario also. And finally, this influenced the society, the politics, and the international relations also. लास्ट वीक आपने नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में पढ़ा है कि जर्मनी में काफी प्रॉब्लम आ गई, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया. फिर अमेरिका ने उनकी हेल्प की थ्रू डेव्स प्लान, उनके लोन्स को ईज ऑफ किया, उन्हें कुछ क्रेडिट भी दिया. एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, जैसे ही ये इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ यूएस ने अपना सारा सपोर्ट विड्रॉ किया, तो यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी तो और ज्यादा नीचे गई, पूरी तरह डिक्लाइन हो गई. एंड देन दिस हैड इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑल्सो. ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा. आप देखो बाय 1928 टू 1934 इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इट नियरली हाफ्ड, आधा हो गया, 50% डिक्लाइन. व्हीट प्राइसेस दे फेल बाय 50% और जूट प्राइसेस 60% डिक्लाइन हो गई. तो हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है, जो मेनली फार्मिंग कर रहा है, उसको सबसे ज्यादा लॉस होगा. So rural population they suffered more than the urban dwellers, because urban dwellers अगर प्राइस कम होती है उनको तो फायदा है, बट रूरल पॉपुलेशन उनका तो सोर्स ऑफ इनकम डिक्लाइन हो गया. एंड देन India became an exporter of precious metals. Actually, India was a British colony by that time, so the Britishers they started exporting precious metals from India, notably gold here. There was a famous economist, John Maynard Keynes, जिसका एक कोटेशन है, कि जो गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से ना, इट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी.
It promoted the British economic recovery, and obviously in long run it promoted the global economic recovery also. But what about India? इंडिया का तो क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है, वेल्थ का ड्रेन हो रहा है ना? एंड देन कम्स द पोस्ट वॉर एरा. आप देखो, by 1939 there was again outbreak of Second World War, and we have discussed all this in Nazism and the rise of Hitler in class 9th. आपने already इसको पढ़ा हुआ है. Now again this war was fought between Allied power and Axis power. Allied power में same countries थी, Britain, America, France and Russia. Axis power में कौन है? जापान, इटली एंड जर्मनी. ठीक है. अब इस वॉर में भी आप देखो तो अराउंड 60 million people they died. That is 3% of the world population. Even US emerged as the dominant economic, political and military power in the Western world. यानी फायदा किसको हो रहा है? यूएस को. एंड देन एक और चीज हुई. ईस्टर्न वर्ल्ड में Soviet Union emerged as a dominant country. It led to domination of Soviet Union in the eastern side, mostly in the Asian countries. और अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट हुआ. नाउ दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट हियर. अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो बहुत जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हुआ. अराउंड 60 million people they died in this war, which was 3% of the total population of the world at that time. डिस्ट्रक्शन भी बहुत हुआ. आप सबको पता है जापान, हिरोशिमा, नागासाकी, जहां पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए, तो पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन हुआ. जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया यूएस के, बहुत जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हुआ. ओके. एंड जो इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे सारी दुनिया के, उन्हें कुछ चीजें समझ में आई. दे ड्रू सम की लेसन्स फ्रॉम दिस इंटरवॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस. कुछ सबक लिया उन्होंने, कुछ लेसन्स लिए उन्होंने, और वो क्या थे कि अगर if we want to survive as an industrial society, industrial society is mostly based on mass production, so you cannot survive without mass consumption. अब mass production तो कर लोगे, but अगर consumer ही नहीं खरीदने के लिए, तो उसका क्या फायदा? तो you have to create mass consumption also. अब mass consumption कैसे create होगा? जब लोगों के पास इनकम होगी. when people will have high and stable income, then only they'll buy things. तो mass consumption can only be created through stable incomes. Stable income कैसे generate होगी? Through stable unemployment. अगर employment stable नहीं है, unstable है, तो income unstable है. in that case consumption भी unstable है, तो mass production का कोई फायदा नहीं. तो उनका मेन एम था कि हम एक stable economic situation दुनिया में डेवलप करें. ओके. तो इस केस में obviously they tried to stable the incomes. ओके. they understood कि हमें full employment generate करना होगा. तो दो institutions का conceptualization हुआ, and they are known as Bretton Woods institutions. ओके. तो जो मेन एम था पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का, वो क्या था? वी नीड टू प्रिजर्व द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वी नीड टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, ओके, so that we can create need of goods, so that whatever is being mass produced in industry we can sell it. तो obviously जो United Nations है, they sat down, conceptualization United Nation का भी हो रहा था, although ये फॉर्म नहीं हुआ था अभी तक. तो हुआ क्या? यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई 1944 में एट ब्रेटन वुड्स, दैट्स इन न्यू हैम्पशायर, यूएसए. ओके. और यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस का कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ. And these two organizations, they are actually International Monetary Fund, IMF, and World Bank, and they are known as Bretton Woods twins also. तो सबसे पहले International Monetary Fund, IMF, बनाया गया, and its main aim was to deal with the external surpluses and the deficits of its member nations. Then there was conceptualization of International Bank for Reconstruction and Development, which is currently popularly in these days known as World Bank. ओके. और इसका मेन कंसेप्ट क्या था, मेन एम क्या था? पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन. जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट इट नाउ. ओके. सो ये जो सिस्टम है, पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है ना, इसको अक्सर हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी बोल देते हैं, बिकॉज इट हैज बीन डोमिनेटेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय IMF and World Bank. And IMF and World Bank both are dominated by USA, because USA has got veto power in both these organizations.
ओके। फिर पोस्ट वॉर ईयर्स की हम बात करें तो इसका फायदा एक्चुअली वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस को ज्यादा हुआ, और अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो एक जापान को ज्यादा फायदा हुआ। वर्ल्ड ट्रेड की बात हम करें तो ये ग्रो किया एनुअली एट अ रेट ऑफ 8% बिटवीन 1950 टू 1970, और जो इनकम ग्रो की दैट वाज नियरली एट 5%। फाइन। पर मैक्सिमम फायदा किसको मिला? वेस्टर्न नेशंस को मिला। इन बिटवीन अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों की बात देखें तो इनके बाद ना एक नया दौर आया, दैट वाज अ पीरियड ऑफ डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। Whatever the colonies were there in Africa and Asia, they started their struggle of independence and they became independent also later on. Second World War के बाद तो ये और ज़्यादा gradual phase में convert हो गया when countries started becoming independent. Okay? अब ये countries independent तो हो गए, but they were all suffering from poverty and lack of resources. और इस सिचुएशन में जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो गया कि वो इन कंट्रीज़ को, मोस्टली द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनको कंट्रोल करना, उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करना, इट वाज क्वाइट इजी फॉर देम। एंड हाउ वे दे ट्राइंग टू कंट्रोल देम? थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ओके। ऐसे में क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको लगा कि भैया इसका फायदा हमें तो मिल नहीं रहा है। यू कैन सी इन दिस मैप, ये जो येलो रीजन्स हैं इनको तो कोई फायदा मिल नहीं रहा है इन ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस का। ओके। ज्यादातर फायदा कौन ले जा रहा है? मोस्ट इट इज टेकन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, दैट इज अमेरिका। यूरोप अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव कर गया, रिवाइव कर गया, जापान रिवाइव कर गया, बट ये जो येलो शेडेड रीजन्स है दे कुडंट। इनमें अभी भी पॉवर्टी थी, इन्हें अभी भी उस रूल्स एंड रेगुलेशन जो ब्रिटेन वुड ट्विंस ने बनाए थे उसके फायदे नहीं मिले। तो इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ 77 नेशंस, दैट इज नोन एज G77 nations, and they demanded NIEO. Now what is NIEO? Actually it is known as New International Economic Order. So let's talk about this NIEO. You know, when these G77 countries were demanding NIEO, actually what they meant through this was that they wanted a system that would give them real control over their resources, their natural resources, and more development assistance also. Plus, they wanted fairer prices for their raw materials, which the multinational companies were using. Then they wanted better access for their manufactured goods in the developed countries' markets also. So finally, what happened? As these demands were going on and the European economies revived, the Japanese economy revived, it led to the end of Bretton Woods institutions. 1960 onwards क्या हुआ? कुछ और कंट्रीज चूंकि ये डिमांड करने लगी तो जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस का डोमिनेशन था ना वो खत्म हुआ। इनिशियली पता क्या था, जो डॉलर था इसकी जो प्राइस थी वो फिक्स्ड थी विद गोल्ड। ओके, लाइक $1 वॉज इक्वल टू 35 ounce ऑफ गोल्ड। बाद में क्या हुआ, जब कंट्रीज ने इस पर क्वेश्चन किया तो फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया जहां पर डॉलर की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रही। ठीक है, अदरवाइज पहले डॉलर की वैल्यू बहुत स्ट्रांग थी, अभी भी है, बट हाँ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आने से वो जो डोमिनेशन था वो थोड़ा इनका कम हुआ। एंड फाइनली देयर वाज ग्लोबलाइजेशन. You know, as I told you earlier in the beginning of the chapter that during 15th century China went into isolation. Till then the trade center was in Asia, that was in India and China. Afterwards what happened? China went in isolation and then industrialization was there in England, in Europe. So the trade center shifted to Europe. Okay. Now 1960 onwards चीजें चेंज हुई। चाइना ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की, देन सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो जो एक कम्युनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो थोड़ी वीक हुई and the countries they started changing their economic policy. Fine. And then the multinational companies from the developed nations they started relocating their industries to low wage countries. Okay, तो उससे क्या हुआ, जो कैपिटल का फ्लो है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वाज देयर इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेजेस हैं वो चीप है, रॉ मटेरियल भी चीप है। ठीक है, अगर आप लास्ट 2 डिकेड्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखो तो इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड
It has shifted, to India, China and Brazil. यहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है ना. रैपिड इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, एंड द इकोनॉमी ऑफ दीज रीजन्स हैव रिवाइव्ड अ लॉट. सो फाइनली जो आज का आप मॉडर्न एरा देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन का, तो वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ से शुरू हुआ, जब कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमीज को लिबरलाइज किया, मॉडर्नाइज किया, ग्लोबलाइज किया. इकोनॉमिक्स में आपका एक चैप्टर भी है 10th में, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पर आप इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पढ़ोगे, ठीक है. नाउ वी कम टू द last section of this chapter, that is homework. So I hope you understood this chapter. Just read the chapter, go through the module and try to do these questions. The first question is, given account of indentured labor migration and how it led to emergence of mixed culture. Then what was the impact of war on Britain? The next question is, what was the impact of Great Economic Depression in India? Then fourth question is, what were the key lessons learned by economists and the politicians from interwar economic experiences? Then the next question is, what do you know about Bretton Woods twins? Then what is NIEO? I hope you remember. New International Economic Order. And why was it demanded by G77 nations? So try to solve these questions.